morning, dear students. So now today I will be discussing how a string can be parsed using a top-down parser. Earlier we discussed how to transform grammar in my previous videos. So original grammar was this. After transformation we have this grammar, which is LL1 grammar, and then from this grammar we have seen in a video that how to construct first and follow set. Then in another video we have seen how to construct the parsing table for the same grammar. So this is the parsing table that this time we will be considering for parsing any string that is encountered. Now you see the structure of this parser, top down parser, that is predictive parser. We have a input string followed by dollar. Dollar, as I told you, is the end marker always, and there is a stack. Stack again has a dollar as an end marker, and x, y, z, these are the grammar symbols onto stack. They will appear as and when the string starts, parsing starts. So top of the stack is x. There is a parsing program or the driver program that parses the string. It regularly consults the parsing table as and when it requires to be consulted. So based on this structure, an output is produced. What is the output? Whether a string is parsed successfully or it is failed. So you see, this is the parsing program. The program is very simple. There is a string called W. Whatever string that we have taken will be W. So we have taken this string ID plus ID star ID. Dollar is the end marker at both the sides. This is the stack side. I can write here, this is the stack side, and this is the W, that is input side. So since it is a top down parser, start symbol, we should start from the start symbol. So start symbol is coming at the onto the stack, right? So now you see, let us briefly understand the algorithm. So if X is the symbol which is at the top of a stack and A be the input symbol. In our example, E is the symbol at the top of a stack to start with, and ID, this first ID is the in place of A, that is the next input symbol or current input symbol. So I have pointed it by an arrow, that is currently being pointed by this arrow. So what is the algorithm? If X is not equals to dollar, so this loop will run, this loop, entire loop will run until X becomes equals to dollar. So as soon as X is what? Top of the grammar stack symbol. So X becomes equal to dollar, this algorithm will be terminated and string will be passed. So if X is not equal to dollar, there are two conditions. One is either X is a terminal symbol or X is a non-terminal symbol. So if X is a terminal symbol, simply stack will be popped and input pointer will be enhanced. Sunny, it will go to the next symbol, right? And if X is a non-terminal, then you have to consult the parsing table, because you know the parsing table structure. You see, parsing table is a two-dimensional table that is between a set of non-terminals and set of terminals. So it can be consulted only when you have a non-terminal and a terminal kind of combination. So let us come back here. So parsing table you will be consulting only in case of the grammar symbol is a non-terminal, which is onto a stack, top of the stack, and next input symbol is A. So what will happen then? This entry of the parsing table is consulted, and suppose this is the production that we have found from the parsing table, right? So after this, what will we will be doing? We will simply pop the stack. So topmost stack symbol will be popped. This X will be popped, and in place of X, what will be pushed onto stack? This entire, keeping Y1 onto top of stack. That means stack, how will we be putting these symbols onto stack? सबसे पहले YK put होगा, फिर YK -1 and so on, फिर Y2 and top पे Y1. ये सिंपल सा एल्गोरिथम है. अब हम स्ट्रिंग को हम पास कर रहे हैं, राइट? तो ये हमारा स्टैक हो गया. स्टार्टिंग में हमारा जो स्टार्ट सिंबल होता है ग्रामर का, यानी कि ई आ गया, और ये स्ट्रिंग हो गया.
तो अब हम स्टैक के टॉप को और ये आईडी, इन दोनों सिंबल्स को हम देखते हैं। स्टैक के टॉप पे ई है, नॉन टर्मिनल है, और आईडी ये टर्मिनल है, तो ये पार्सिंग टेबल की एंट्री को कंसल्ट करेगा। अब पार्सिंग टेबल में हम ई आईडी लोकेशन देखते हैं। देखिए ई आईडी ये है ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश। आप देखो ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश, तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ई प्रोड्यूसिंग टी ई डैश आ गया। अब हमको अगले स्टेप पे जाना है। अगले स्टेप पे जाके स्टैक में क्या आ जाएगा, ई डैश टी, और इनपुट पे हमारा कोई चेंज नहीं होगा, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ये एज इट इज़ रहेगा। ये कौन सा केस था, ये वाला केस था पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन का, ये वाला स्टेप जिसमें मैंने बताया था कि स्टैक के टॉप पे क्या है, जो लास्ट सिंबल दिख रहा है आरएचएस में वो स्टैक के हमेशा बॉटम में आता है, जो फर्स्ट सिंबल दिखता है वो टॉप पे आता है। तो आप देखो ये जो फर्स्ट सिंबल है टी, ये स्टैक के टॉप पे है, और जो लास्ट सिंबल है स्टैक के बॉटम में आ गया, ठीक है, और ये ई हट गया यहाँ से। अगले स्टेप में हम आ जाते हैं। अब देखो टी और ये आईडी, यानी कि फिर से पार्सिंग टेबल देखना होगा क्योंकि टी नॉन टर्मिनल है और आईडी टर्मिनल है। तो इस लोकेशन को देख के आप बताओ कि कौन सी एंट्री है पार्सिंग टेबल में टी आईडी में। आप देख सकते हो टी और आईडी में एंट्री है आपकी टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश, टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश। तो अब ये फिर से एक प्रोडक्शन आ गया। तो अब फिर स्टैक पे हमको जो है पॉप करना पड़ेगा टॉप सिंबल, यानी कि ये हो गया आपका ई डैश, और टी हट गया और ये एफ टी डैश आ गया, यानी कि पहले टी डैश आएगा फिर आपका ये एफ आएगा, और इस इनपुट साइड में कोई भी चेंज नहीं होगा, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी डॉलर, राइट। फिर अब अगला स्टेप पे आते हैं। अब देखो एफ स्टैक के टॉप पे है नॉन टर्मिनल और ये आईडी है, तो फिर से पार्सिंग टेबल आपको देखना पड़ेगा, एफ आईडी में पार्सिंग टेबल आप देखो क्या मिल रहा है आपको, ये एफ है और ये आपका आईडी है, तो एफ आईडी पे प्रोडक्शन मिल रहा है, एफ प्रोड्यूसिंग आईडी, राइट। तो एफ आईडी के प्रोडक्शन पे जो है अब आप इसको पहले ही की तरह ई डैश टी डैश एफ को हटाया, यहाँ पे आईडी आ गया, स्टैक पॉप हुआ और ये पुश हो गया आरएचएस, क्योंकि सिंगल सिंबल है तो टॉप पे भी वही रहेगा, और इनपुट साइड पे आपका वही आ गया, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी फॉलोड बाय ये हो गया डॉलर। अगला स्टेप बढ़ते हैं हम। अगले स्टेप पे देखो आप ये आईडी और ये आईडी बोथ, अब ये देखिए पार्सिंग टेबल का एल्गोरिथम क्या कह रहा है, इफ़ x बी द सिंबल एट द टॉप ऑफ स्टैक, और ये x अगर a है, यानी कि x और टर्मिनल सिंबल सेम आ जाते हैं तो स्टैक को पॉप करना है और इनपुट को एडवांस करना है, तो ये पहला वाला केस आ गया। अब हमको स्टैक को पॉप करना है, यानी कि ई डैश टी डैश ये पॉप हो जाएगा टॉप मोस्ट सिंबल, और इनपुट एडवांस हो गया, यानी कि आईडी के बाद अब प्लस नेक्स्ट पे आ गया, प्लस पे, तो प्लस आईडी स्टार आईडी, तो टॉप वाला जो आईडी हट गया, ठीक है। अब फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं, ई डैश टी डैश और ई डैश टी डैश, हाँ यहाँ पे अब अगले स्टेप में क्या देखो टी डैश प्लस है, तो टी डैश प्लस है, अभी क्या है पार्सिंग टेबल की एंट्री देखनी पड़ेगी टी डैश प्लस की, तो अब टी डैश प्लस की एंट्री देखो अब क्या आ रही है, टी डैश और प्लस में ये है टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। तो अब इससे आप क्या करोगे, देखो अगले स्टेप पे ये है, ये वाला हमारा स्टेप था प्रीवियस, तो ई डैश टी डैश हट जाएगा आपका और एप्सिलॉन आ जाएगा, यानी कि कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा वैसे ही प्लस आईडी स्टार आईडी, राइट। और उसके बाद फिर अगला स्टेप आपका आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या देखो आपको फिर से पार्सिंग टेबल देखना है, ई डैश और यहाँ पे प्लस देखना है, नॉन टर्मिनल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन, तो ई डैश प्लस में आप देखो, ई डैश प्लस में क्या है प्लस टी ई डैश, तो ये आपकी पार्सिंग टेबल की एंट्री आ रही है, ई डैश प्लस की प्लस क्या है टी डैश प्रोड्यूसिंग प्लस
टी ई डैश, तो अब ये प्लस टी ई डैश है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो इसका मतलब ये है कि अब ये स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल पॉप हो जाएगा ई डैश, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये बैकवर्ड से आ जाएगा। तो फिर से ये ई डैश आएगा, फिर ये पहले ई डैश आएगा, फिर टी आएगा, फिर प्लस आएगा, ये पुश हो जाएंगे स्टैक पे, और ये वाला ई डैश हट जाएगा एज यूजुअल जैसे पहले किया हमने। ये प्लस आ गया, और इस इनपुट साइड में अभी हमारा वैसे ही रहेगा, प्लस आई डी स्टार आई डी हो गया ये। अगले स्टेप पे आओ। अब अगले स्टेप पे देखो, दोनों स्टैक और इनपुट टर्मिनल सिंबल्स हैं, तो ये स्टैक से टर्मिनल सिंबल पॉप हो जाएगा, तो ई डैश टी, और इनपुट पॉइंटर इनहेंस हो जाएगा, तो प्लस अब हट जाएगा, आई डी स्टार आई डी हो गया, फिर डॉलर। फिर अगले स्टेप पे हम आते हैं। अगले स्टेप पे देखो, टी आई डी है, यानी कि नॉन टर्मिनल टर्मिनल। पार्सिंग टेबल में आप देखो टी आई डी में आपको क्या मिल रहा है, टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश मिल रहा है आपको, टी प्रोड्यूसिंग एफ टी डैश। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डैश टी हट जाएगा, एफ टी डैश आ जाएगा। तो एफ टी डैश का मतलब क्या हुआ, पहले टी डैश आएगा, फिर एफ आएगा, स्टैक में पुश होगा, और यहाँ पे आपका आई डी स्टार आई डी आ जाएगा। ठीक है, ये मैं सीधे लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ बार नहीं लिखी मैंने, क्योंकि आई होप कि आप समझ रहे होगे। अब अगला स्टेप पे आओ आप। अगले स्टेप पे आप देखो, ये ई डैश हो गया, टी डैश हो गया, अब ये एफ और आई डी है, एफ आई डी। फिर से पासिंग टेबल देखना पड़ेगा, एफ आई डी वाली लोकेशन में, एफ और आई डी वाली लोकेशन में आपको एफ आई डी मिल रहा है, एफ प्रोड्यूसिंग आई डी। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो एफ यहाँ पे आई डी पुश हो जाएगा, एफ हट जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा आपका इनपुट साइड आपका। अब आप अगले स्टेप पे आओ, देखो आई डी स्टैक और इनपुट में बोथ आर टर्मिनल सिंबल्स, तो स्टैक पॉप हो जाएगा, ई डैश टी डैश बचा, ये पॉप हो गया, और उसके बाद ये आई डी हट जाएगा यहाँ से, स्टार आई डी बचा, राइट। अगले स्टेप में हम आ जाते हैं। अगले स्टेप में देखो, टी डैश स्टार, यानी कि पासिंग टेबल फिर से देखना है आपको, टी डैश स्टार में टी डैश स्टार एफ टी डैश, ये वाला प्रोडक्शन है, यानी कि ये स्टैक पॉप होगा, और क्या इनपुट पुश होगा स्टैक में, टी डैश एफ स्टार, टी डैश एफ स्टार, ई डैश, फिर टी डैश, फिर एफ, फिर स्टार। ये स्टार टॉप पे आ गया, यहाँ पे स्टार आ गया, आईडी आ गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। अगले स्टेप में आते हैं, देखो आप स्टार एज यूजुअल क्या हो जाएगा, ई डैश टी डैश एफ हो गया, और ये स्टार आपका स्टैक से पॉप हो गया, और ये इनपुट पॉइंटर नेक्स्ट सिंबल यानी कि आईडी पे केवल एक आईडी बच रहा हुआ है इनपुट साइड पे, जिसको अब हमको रिड्यूस वो करना है, जिससे स्ट्रिंग हमारी पार्स हो जाएगी। अगले स्टेप में देखो आप एफ और आईडी आ गया है, तो एफ आईडी की जगह आप देख सकते हो डायरेक्टली, एफ आईडी में आपका एफ आईडी वाला प्रोडक्शन है, तो ये एफ हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आईडी, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी आईडी है। अब उसके अगले स्टेप में देखिए आईडी और आईडी है, तो आईडी हट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका ई डैश टी डैश, और यहाँ पे केवल डॉलर। अब ये ई डैश टी डैश, अब अगला स्टेप देखो आप, टी डैश टॉप पे है स्टैक के, और यहाँ पे है डॉलर, तो टी डैश डॉलर में देखो आप, टी डैश डॉलर में टी डैश प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन है, तो सिंपल है, ई डैश और ये टी डैश की जगह एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो टी डैश पॉप होगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, मीन्स केवल ई डैश रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका केवल डॉलर ही है। लास्ट में क्या बचा, या लास्ट में ई डैश स्टैक पे बचा, ओनली वन सिंबल, और यहाँ पे डॉलर है, तो ई डैश डॉलर में आप देखो कोई एंट्री है, ई डैश डॉलर में, यस एक एंट्री है, ई डैश प्रोड्यूसिंग डॉलर, यानी कि ये डैश हट जाएगा, यहाँ पे डॉलर ही बचेगा, और आप देखो यहाँ पे भी डॉलर बच रहा है, तो डॉलर स्टैक साइड में, यानी कि स्टैक में कोई भी सिंबल नहीं बचा, और इनपुट साइड में सारे इनपुट सिंबल्स जो है यूज़ हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ सक्सेसफुल पार्सिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग। ये इंडिकेशन है कि स्ट्रिंग आपकी सक्सेसफुल पार्स हो गई, और यही आपकी देखो पार्सिंग टेबल की जो ये पार्सिंग एल्गोरिथम का इंडिकेशन भी है, वाइल एक्स नॉट इक्वल्स टू डॉलर। अब हमारे देखो एक्स
इक्वल्स टू डॉलर हो गया, यानी कि एक्स मीन्स जो स्टैक साइड में था वो डॉलर है, इनपुट भी डॉलर है आपका, स्ट्रिंग इज सक्सेसफुली पार्स। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी जो कभी अगर रॉन्ग पार्सिंग टेबल बनी है तो आती है कि ये जो हम बार बार पार्सिंग टेबल देख रहे थे, यू सी दीज आर द पार्सिंग टेबल एंट्रीज, अगर इन एंट्रीज को हम पार्सिंग टेबल में देखते हैं और अगर किसी ब्लैंक लोकेशन पे लेके जाते हैं हमको, ये मान लो ये टी आईडी है और टी आईडी की जगह हमने देखा कि ये वाली एंट्री मिली, बट इस वाली एंट्री की जगह अगर ये ब्लैंक एंट्री होती तब क्या होता, तब ये होता कि पार्सिंग फेल हो जाती, पार्सिंग आगे नहीं बढ़ती। तो या तो पार्सिंग टेबल में एंट्री गलत आई है यानी ग्रामर गलत है, और या फिर वो स्ट्रिंग गलत है, दो में से एक पॉसिबिलिटी बनती है। और दूसरा केस ये है कि मान लो किसी और लोकेशन में हम, जैसे ये है टी डैश प्लस लोकेशन हमने देखी पार्सिंग टेबल में, तो इसमें ये एक एंट्री मिली टी डैश प्लस प्लस ये वाली, तो अगर एक की जगह दो एंट्रीज होती यानी कि एम्बिगुअस ग्रामर होता, तो आप उनमें से कौन सी एंट्री को यहाँ पे यूज़ करते, तो वो अपने आप में एक इशू बन जाता। इसीलिए अगर ग्रामर एम्बिगुअस रहेगा तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी मल्टीपल एंट्रीज़ की, जो कि फॉर्चुनेटली हमारे स्ट्रिंग में नहीं आई है। बट आप इसमें एक ऐसा ग्रामर या ऐसा स्ट्रिंग ले सकते हो आप ये चेक करने के लिए कि जो आपको लगता हो कि इस पर्टिकुलर जो ये हमारा पर्टिकुलर ग्रामर है, अगर आपको ये अपना सेल्फ एक्सरसाइज करना है, चेक करना है, हिट एंड रन करना है, तो आप इस ग्रामर के हिसाब से एक ऐसी स्ट्रिंग ले लो और जो कि जो है पार्स नहीं हो सकती हो, और उस स्ट्रिंग को आप पार्सिंग टेबल बनाओ उसकी, और पार्सिंग टेबल तो इस ग्रामर के लिए बनी हुई, उसको बस ऐसे आप पार्स करके देखो, और अगर वो पार्स ना हो पाए तो क्लियर है कि आपका ये ग्रामर बिल्कुल सही है। तो और अगर पार्स हो जाती जस्ट लाइक दिस, तो आपका ये ग्रामर बिल्कुल ठीक है, और नहीं हो पाए तो आपका जो है ग्रामर तो ठीक है लेकिन वो स्ट्रिंग कहीं ना कहीं जो है ग्रामर रूल्स के अगेंस्ट में नहीं है। तो फाइनली आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टॉप डाउन पार्सर। So I thank you for watching. Thank you.